إذ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون فتقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفرك لكل ذنب فهمته وصمت عنه حياء منك عند ذكره أو كتمته في صدري وعلمته مني فإنك تعلم السر وأخفى فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفرك لكل ذنب يبغضني إلى عبادك وينفر عني أولياءك أو يوحشني من أهل طاعتك بوحشة المعاصي وركب الحوب وارتكاب الذنوب فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى الكفر ويطيل الفكر ويورث الفقر ويجلب العسر ويصد عن الخير ويهتك الستر ويمنع اليسر فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدني الآجال ويقطع الآمال ويشين الأعمال فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي يا خير الغافرين पांचवी मंजिल बरोज सफा नंबर 97 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك
واختم لي بخير أملي واجعل ثوابة الجنة. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الأيم ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقر به إلا إليك، تقربه بها إليك. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك، مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أمتها فاغفر لها وارحمها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي بيميني. اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك أن تسد عني وجهك يوم القيامة. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عظم الكفرة أهل الكتاب والمشركين والذين يجحدون آياتي ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدوا حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي بما هدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله غيرك. اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي. يا تواب تب علي. يا رحمن ارحمني. يا عفو اعف عني. يا رؤوف بي. يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفقني حسن عبادتك. يا ربي أسألك من الخير كله. يا رب افتح لي بخير وآتني تشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقني السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم
اللهم بحمدك إن صرفت وبذنب اعترفت أعوذ بك من شر ما اقترفت وأعوذ بك من جهد البلاء ومن عذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من كل أمل يخزيني وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني وأعوذ بك من كل أمل يلهيني وأعوذ بك من كل فقر ينسيني وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وأسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حق. أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكرا. اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أن أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك. أمرتني فعصيت ونهيتني فأبيت. هذا مكان العائذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيك وإبراهيم خليلك وموسى ونجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أو غنيته أو غني أفكرت أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقرت وعلى الجبال فرست. وأسألك باسمك الذي استقر به عرشك وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك وباسمك الذي ودعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله ذي الشأن العظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا
عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد، يا أحد من لا أحد له، يا سند يا من لا سند له انقطاع الرجاء إلا منك. نجني مما أنا فيه وأعني على ما أنا عليه مما نزل به بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك، آمين. اللهم احصني بعلمك الذي لا تنام واغفرني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلية صبري فلم يكسلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفتح لي هذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبك أدروا في نحور العداء والجبابرة. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान ज़ियाई साहब तामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और इंतहाई वाजिबुल एहतराम नौजवानान अहले सुन्नत फर्जंदान अहले सुन्नत, माह रमज़ानुल मुबारक इस्लाह का और तरबियत का महीना है। अकाइद की इस्लाह भी होती है और इस्तिकामत की दुआ भी होती है, और फिर तरबियत क्या हम अपनी समाजी माशरती ज़िंदगी में किस तरह दीन इस्लाम को खुद अपनी ज़ात पर नाफिज करें। हुदूद व ताज़ीरात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल की जानिब से सबसे अहम अवामिर हैं, उन अहकामात को समझना और उस पर अमल करना। आज हमारा उन्वान तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत
और ये बहुत अहम उन्वान है और अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मैं अर्ज़ करूं आपसे कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारक वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात की लाखों करोड़ों खूबियां हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल, आपका शीरी कमाल कलाम, आपका किसी के साथ अता करना, जूदो सखा का, फयाजी का, सखावत का मुजाहिरा करना, लोगों की इस्लाह करना, ये सब खूबियां हिदायत रहनुमाई के हवाले से हैं। लेकिन बाज औसाफ ऐसे होते हैं कि जो खास पहचान का जरिया बन जाते हैं, और वो जो पहचान का जरिया बनते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अहम होते हैं। सारे अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम अजमईन कम व बेश 1,24,000 सब नबी हैं। हम उन्हें, जो नबी हैं उनको हम नबी कहते हैं, जो रसूल हैं उनको हम रसूल कहते हैं। रसूल साहिब किताब होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नबी हैं। तो ये हर नबी और रसूल को जैसे एक पहचान के लिए नबूवत और रिसालत है, ऐसे ही उनके मौजिज़ात भी हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा, ये उनकी पहचान का जरिया है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था, ये असा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास था, हज़रत मूसा के पास नहीं था, तो पहचान तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हमारे नज़दीक यही है कि भाई उनका असा जो है वो असदाहा भी बन जाता था, और उनका असा जो है वो चट्टान पर अगर मार दें तो 12 पानी के चश्मे भी जारी हो जाते थे। तो ये किसी और की तरफ अगर निस्बत दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये उनकी पहचान है, ये उनका टाइटल है। ऐसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, अफदलुर रसूल भी हैं, सारे नबियों के सरदार भी हैं, सारे नबियों के इमाम भी हैं, और सैकड़ों मौजिज़ात कमालात आपकी ज़ात में हैं, और आप आखिरी नबी भी हैं। ये आपकी खास पहचान है कि आप आखिरी नबी हैं, क्योंकि तमाम नबियों और रसूलों ने जब भी आपकी खबर दी तो यही कहा कि अल्लाह के आखिरी रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारे काबा उठाने के बाद यही दुआ की थी कि अल्लाह मेरे इस बेटे इस्माइल की नस्ल से जो आखिरी रसूल तशरीफ लाने वाले हैं, तो उनकी वजह से इस शहर को बरकत अता फरमा, यानी मक्कतुल मुकर्रमा को बरकत मिले। तो सब नबी और रसूल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की जानिब से आखिरी हिदायत, आखिरी नबी, आखिरी रसूल और कुरान मजीद को आखिरी किताब और हमें और आपको आखिरी उम्मत समझते भी रहे, कहते भी रहे
और लोगों को समझाते भी रहे। तो इस एतबार से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बड़ी पहचान है, और इस पहचान को अगर कोई अपने फासिद या गंदे नजरिए से आलूदा करना चाहे, मिटाना चाहे, तो याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से यह अम्र है, किसी के मिटाने से यह पहचान मिटेगी नहीं, किसी के बिगाड़ने से ये पहचान बिगड़ेगी भी नहीं। हाँ, वो अपना मुकद्दर खराब करेगा, वो अपना आप जो है वो बिगाड़ लेगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा और रहेगा। अब यहां ये बात भी समझ लीजिए अकीदे खत्म नबूवत के साथ साथ कि उलमाए इस्लाम ने और फुकाहे इस्लाम ने इस ज़िम्न में क्या काम किए हैं। सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनका किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि मुसैलमा कज़्ज़ाब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में आकर मिला भी था, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसने ये झूठ कहा था कि मुझे भी अल्लाह ताला ने अपना कलाम दिया है और मैं भी नबी हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी मुजम्मत की थी और अपने पास से इसको भगा दिया था। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तलीहा असदी, अस्वद उनसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब और एक सज्जाह नामी औरत उसने नबिया होने का दावा किया था। अस्वद उनसी को कत्ल कर दिया गया। तलिया असदी ने तौबा की और रुजू कर लिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब से सज्जाह ने निकाह कर लिया, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जंगे यमामा में, जो कि बड़ी सख्त तरीन जंग थी, बहुत सख्त जंग थी, और इस जंग की पेशगोई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मकाम पर की थी। तफसीरात अहमदिया में हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह वो उस पेशगोई के मुताबिक जंगे यमामा ही को उसका मिस्ताक करार देते हैं कि इतनी सख्त जंग कि जिसमें बड़ी तादाद में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उनकी शहादत अमल में आई। पहले दिन 600 सहाबा शहीद हो गए, जबकि यहां देखिए मैं मवाजने के लिए अर्ज कर रहा हूं, इसको आप समझिए, तवज्जो दीजिए और इस पे गौर भी की फरमाइए कि मजमूई तौर पर गज़वात या मुहिम्मात या सराया 57 बनते, और इन सब में 57 में 3 कम 60 सिर्फ 254 मुसलमान शहीद हुए। 254, और ये तकरीबन 4 का एवरेज बनता है कि एक जंग में तकरीबन 4 मुसलमान शहीद हुए। और ये जंग यमामा एक ही जंग है, और एक ही जंग में पहले दिन 600 मुसलमान शहीद हो गए। तो ये बहुत अहम, बहुत ही खदशात और अंदेशों के साथ और बहुत ही मुतफक्किर होकर इस पे अगर आप गौर करें तो ये फिगर बहुत बड़ा है। 600 शहीद हो गए। दूसरे दिन 400 शहीद हो गए।
अच्छा, जंग में ऐसा भी होता है कि अगर दोनों फरीक राजी हो जाएं तो जंग को सिलो भी कर सकते हैं। मुज़ाकरात होते हैं जर्नैल के आपस में कि भाई जरा सब्र से लड़ाई करेंगे, भाई पूरे मुसलसल सारा दिन नहीं लड़ेंगे या सारी रात नहीं लड़ेंगे, ठहर ठहर के लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जो सिपा सालार थे, उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि अगर आप कहें तो हम जंग से हाथ खींच लें, क्योंकि बड़ी तादाद में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की शहादत अमल में आ गई है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा नहीं, लड़ाई नहीं रोकनी, लड़ाई जारी रखनी है। दूसरे दिन 400 शहीद हो गए, अब 1000 की तादाद हो गई। कासिद फिर आ गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के कह दो खालिद बिन वलीद को कि लड़ते रहो, अगरचे तुम मर जाओ, लड़ते रहो। तुम्हें इत्तला मिले तुम्हारा खलीफा मर गया अबू बकर, फिर भी लड़ते रहो, इसलिए कि मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बराबरी का दावा करने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब उसे जिंदा नहीं देखना चाहता, क्योंकि बराबरी नहीं हो सकती। यहां तो जात की बराबरी करने चला था वो, बराबरी तो किसी एक अम्र में भी नहीं हो सकती। यानी कोई एक नाउजुबिल्लाह कहे कि भाई फला के गेसू बड़े अच्छे हैं, नाउजुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गेसुए मुबारका से, नाउजुबिल्लाह कोई कहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तार या अमामा शरीफ से अच्छा फला का अमामा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अच्छा फला का चलना या बोलना, ये कोई बराबरी नहीं हो सकती। याद रखिए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर अपने नाखून तराश लें तो तराशे हुए नाखून जो जिस्म से जुदा हो गए, उस तराशे हुए नाखून की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैने पाक से रेत के जर्रात अगर लग जाएं और फिर झड़ जाएं तो अब नालैन से तो अलग हो गए, लेकिन उनकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। तो यह है आपका तकद्दुस और यह है आपकी इनफिरादियत, आपका तफर्रुद। इसीलिए उलमा ने यह बात कही, जंग यमामा से यह नतीजा निकाला कि किसी भी एतबार से दुनिया में जमीन पर वो शख्स जिंदा रहने का हक नहीं रखता जो आकाए दो जहां मालिक कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अदना तरीन गुस्ताखी का भी इर्तिकाब करे, उसे जिंदा रहने का हक नहीं, उसे मारा जाएगा। और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अगर उसको मार ना सको तो फिर उम्मत मुस्तफा को जिंदा रहने का हक नहीं है। या तो उम्मत उसे मार दे या फिर उम्मत ही जिंदा ना रहे, यानी लड़ते लड़ते खुद मर जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में बियान समआन नामी एक शख्स ने दावा किया था नबूवत का। किसी अकीदतमंद ने आपसे यह अर्ज किया कि हुजूर आप इजाजत दें, उस्ताद जी आप इजाजत दें कि मैं वो नबी होने का जो दावेदार है उसके पास जाकर कोई निशानी वगैरह मांगू उससे। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया फौरन तौबा कर, तू काफिर हो गया,
तेरे दिल में ये ख्याल आया कैसे कि उससे निशानी मांगू? इसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला ने जो एजाज और जो मकाम व मर्तबा ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारक वसल्लम को अता किया है, उसमें कोई शक है कि किसी दूसरे से जाकर के निशानी मांगी जाए? ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसे देखिए, ये तो हो सकता है कि कोई शख्स ये दावा करे, कोई खातून ये दावा करे कि भई अब्दुल रहमान की जो वालिदा है ना वो असली नहीं है, असली वालिदा मैं हूं। कोई ये दावा करे, दो औरतों में किसी एक बच्चे पे झगड़ा हो जाए कि भाई ये मेरा बच्चा है, तो उससे निशानी पूछी बिल्कुल एक ही बात है कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले पर किसी दूसरे को नबी माने या वो खुद कोई नबूवत का झूठा दावा करे, उससे कोई निशानी तलब नहीं की जाएगी। वो कज़्ज़ाब है और वो कज़्ज़ाब ही रहेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमा दिया था कि मेरे बाद जो है ऐसे कज़्ज़ाब, ऐसे दज्जाल आएंगे कि जो नबूवत का झूठा दावा करने वाले होंगे और लोगों में, उम्मत में फितना बर्पा करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई थी। और मैं ये अर्ज करूं आपसे कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ आते रहे हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि असवद उनसी और तलिया सदी और दूसरे, तो ये मैं आपको कुछ इसके बारे में बयान करता हूं। असवद उनसी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में 11 हिजरी में नबूवत का दावा किया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके कत्ल की खबर दी थी और हजरत फिरोज देलमी रदी अल्लाह ताला साहबी रसूल हैं, इन्होंने इसके घर में घुसकर इसकी गर्दन तोड़कर इसको जहन्नम रसीद कर दिया था। ये बातें याद रखने की हैं और बहुत बल्कि मुनासिब होता है कि मोतकिफीन जब ट्रेनिंग और तरबियत के लिए बैठे, समाअत करें, तो उनके पास अगर कागज कलम हो तो ये बड़ा अच्छा होता है कि उससे उनको काम की बातें लिखने में मौका मिल जाता है। तीसरा कज़्ज़ाब तलिया असदी, इसने खलीफा रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दावा किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी बेखुनी के लिए निकले, इसके सैकड़ों पैरोकारों को तहे तैख कर दिया, वो शिकस्त खा करके फरार हुआ। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उसने कैद में आकर तौबा की और फिर दोबारा मुसलमान हुआ। मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। चौथा कज़्ज़ाब मुख्तार सक़फ़ी, जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का बदला लेने के लिए वो निकला। बहुत सारे लोग उसके साथ हो गए अहले बैत की मोहब्बत में, तो उसने 67 हिजरी में नबूवत का दावा किया और हजरत सैयदुना मुसाब बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला
ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफीजाद भाई हजरत जुबैर बिन अल-अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं। हजरत उरवा बिन जुबैर के छोटे और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के छोटे भाई, तो इन्होंने उसको जहन्नम रसीद किया। पांचवा कज़्ज़ाब हारिस दमिश्की, उसने 69 हिजरी में नबूवत का दावा किया और फिर बनो उमैया के एक हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से उसे कत्ल किया गया। ये तरतीब से मैं अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे। छठा कज़्ज़ाब बयान बिन समआन तमीमी, इसने 96 हिजरी में नबूवत का दावा किया और इराक के जो गवर्नर थे खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी, उन्होंने इसको जिंदा जलवा दिया। सातवां कज़्ज़ाब मुगीरा बिन सईद अजली, 119 हिजरी में इसने नबूवत का दावा किया और इस बदबख्त को भी अमीर इराक खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी ने जिंदा जलवा दिया। आठवां कज़्ज़ाब इसहाक अखरस मराकशी, इसने 135 हिजरी में नबूवत का दावा किया और अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर के हुक्म पर अफवाज बगदाद की लश्कर कशी के नतीजे में मारा गया। नवा कज़्ज़ाब बहा फरीद नीशापुरी, जिसने 140 हिजरी में नबूवत का दावा किया। अब्दुल्ला बिन शाबा ने गिरफ्तार करके अबू मुस्लिम खरासानी के दरबार में पेश किया और फिर यह दरबार ही में कत्ल कर दिया गया। नंबर 14 अब्दुल अजीज बिन बासंदी ने 322 हिजरी में अपनी दरोग गोई का इजहार किया। इस्लामी लश्कर ने मुहासरा करके इसे हलाक कर दिया। 15वां कज़्ज़ाब हामी मजलिसी, 329 हिजरी में इसने दावा नबूवत किया और कबीले मामूद से जंग में अहवाज के मकाम पर कत्ल हो गया। सोलहवां कज़्ज़ाब अबू मंसूर ईसा बरगवाती, इसने 369 हिजरी में बिलकैन बिन जहरी के हाथों यह कत्ल हुआ। इसने 369 में नबूवत का दावा किया था। 17वां कज़्ज़ाब असगर तुगलबी, जिसने 439 हिजरी में दावा किया। हाकिम नसरुद्दौला बिन मरवान ने कैद खाने में डाल दिया और मौत तक इसको भूखा रखा गया और प्यासा रखा गया और फिर ये भूखा प्यासा मर गया। अठारहवां कज़्ज़ाब अहमद बिन क़स्सी कज़्ज़ाब दज्जाली ने 560 हिजरी में दावा किया और उस वक्त के एक हाकिम अब्दुल मोमिन की कैद में यह भी भूखा और प्यासा मारा गया। 19वां कज़्ज़ाब अब्दुल हक मरसी 668 हिजरी में नबूवत का दावा किया और फिर इसने एक रोज फसद लगवाए, यानी पिंडली के ऊपर फासिद खून निकालने के लिए एक यानी कुछ शरियानों को खोला जाता था। तो अल्लाह ताला का कहर और गजब इस तरह हुआ कि इसका खून बंद नहीं हुआ और फिर जिस्म का सारा खून निकल गया, यहां तक कि ये हलाक हो गया।
20वां कज़्ज़ाब अब्दुल अजीज तराबलिसी ने 717 हिजरी में अपनी दज्जालियत का नापाक मुजाहिरा किया। हाकिम तराबलस के हुक्म पर फौज ने गिरफ्तार किया, वासिल जहन्नम किया। 21वां कज़्ज़ाब बायजीद रोशन 990 हिजरी में इसने नबूवत का दावा किया और यह भी अफवाज के हाथों कत्ल हुआ। 22वां कज़्ज़ाब बहाउल्लाह जिसने 1308 हिजरी में ईरान में नबूवत का दावा किया, अंग्रेजों ने उसको सपोर्ट किया तो मुसलमानों के हाथों कत्ल होने से बच गया। बहाउल्लाह के बाद उसके खलीफा बाबुल्लाह ने भी और फिर बाबुल्लाह के एक खलीफा जिक्रुल्लाह ने भी, जो कि तुर्बत में ये जो जिक्री बलोच बहुत पाए जाते हैं, इन्होंने भी नबूवत के दावे किए। इन सब को भी अंग्रेजों ने बचा लिया। 24वां कज़्ज़ाब गुलाम अहमद कायदियानी 1326 हिजरी में इसने नबूवत का दावा किया और इसे भी अंग्रेजों ने बचा लिया और मुसलमानों के हाथों कत्ल होने से बच गया। यह है अब तक के इन कज़्ज़ाबों की एक तारीख जो बड़ी अहम तारीख है। गुलाम अहमद कायदियानी जो था ये गुलाम मुर्तजा का बेटा था और गुलाम मुर्तजा अंग्रेजों के दफ्तर में सफाई वगैरह करता था। टेबल साफ कर दी, किसी अंग्रेज अफसर के जूते साफ कर दिए, बूट पॉलिश कर दी, इस तरह खुशामदाना अंदाज में रहता था। 1857 की जिद्दोजहद आजादी जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद शहीद हुई थी, उलमा बड़ी तादाद में शहीद हुए थे, तो ये गुलाम मुर्तजा ने आगाज किया था कि मैं कई उलमा के घर जानता हूं जिनको गिरफ्तार करवाऊंगा। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुम और लोगों को भी अपने साथ मिला लो। तो गुलाम मुर्तजा ने वो तो सैयद अहमद खान जिसको सर सैयद कहते हैं उसको अपने साथ मिलाया, डिप्टी नजीर अहमद को अपने साथ मिलाया, शिबली नौमानी को अपने साथ मिलाया, अल्ताफ हुसैन हाली को अपने साथ मिलाया, मौलवी ज़काउल्लाह को अपने साथ मिलाया। इन सब को लेकर इसने गुलाम मुर्तजा ने कहा, इसके हाथ से पैसे बंटते थे, ये 20 रुपए देता था और वो मुखबरी करते थे, जैसे आजकल पुलिस के मुखबर होते हैं ना, किसी को पकड़वा दिया और फिर बाद में रिश्वत भी ले ली। तो इस तरह अंग्रेजों के मुखबर बनकर सच्चे मुसलमानों और मुसलमानों के रहनुमा उलमाए अहले सुन्नत को इन लोगों ने गिरफ्तार करवाया। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना शाह अहमदुल्लाह मदरासी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, मौलाना फैज अहमद बदायूनी, मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी के पीछे भी लगे, लेकिन वो मक्कतुल मुकर्रमा चले गए थे। डॉक्टर वजीर खां, अकबर आबादी, तो ये इन लोगों ने बहुत ऐसी यानी बुरी हरकतें, अखलाकी एतबार से भी बुरी, कि ये तो कब कौन ऐसी गद्दारी करता है कि अपने ही मुसलमान भाई को पकड़वा दे। फिर अंग्रेजों ने 5000 उलमा को शहीद किया। मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम नात गोया का लक़ब देकर उन्हें याद करते थे कि तमाम नात गो जितने भी हैं उन सब के इमाम और सरदार मौलाना किफायत रहमतुल्लाह ताला अलैह वो है। तो उनको यानी शहीद किया और उनको भी शहीद करके मुरादाबाद में दरख्त से लटका दिया और कई दिन तक उनकी लाश
लटकी रही, मगर लाश की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों ही से करवाई। अंग्रेजों ने यह चाहा था कि परिंदे आके नोच के खाएंगे, लेकिन परिंदों ही ने उनकी हिफाजत फरमाई। गुलाम मुर्तजा को अंग्रेजों ने कहा कि हमारा ऐसा प्रोग्राम है कि मुसलमान जो हैं अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमने इन पर नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए, जो नौकरी में थे उनको निकाल दिया, इनको हमने तनख्वाहें नहीं दी और तनख्वाहें रोक ली, फिर भी इन्होंने हमारी मिन्नत समाजत नहीं की। लगता है कि ये अपने ईमान में बड़े पक्के हैं, तो इनके ईमान को कमजोर करने के लिए एक दूसरे नबी का तस्वुर पेश किया जाए। शायर मशरिक थे डॉक्टर इकबाल, उन्होंने अंग्रेजों के इस प्लान को अपने एक शायराना जज्बात के साथ बयान किया है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। तो ये अंग्रेज का मंसूबा था कि जो अरब की खालिस फिक्र है, जो हाशमी फिक्र है, जो नबवी मनहज है, उस पर जो मुसलमान चल रहे हैं, तो ये इनके अंदर से निकाल दो और इनको अंग्रेजों की तहजीब, अंग्रेजों का तरीका, ये सब कुछ इनको दे दो और ये अंग्रेज अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारे। इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी तहजीब, इस्लामी शाइस्तगी, इस्लामी माशरती जिंदगी, ये सब भूल भाल जाएं, इस तरह रहने लगे। आपको बच्चों बड़ी हैरानी होगी, आज जिस तरह कोई टोपी या दाढ़ी रख करके चलता है ना, तो लोग उसको कहते हैं, हिकारत से बोलते हैं, ओए मौलवी जरा रास्ता छोड़ दे, ओ मुल्ला फुटपाथ पे हो जा। भाई ये तो भाई पक्का मौलवी हो गया, हर वक्त टोपी पहने रहता है। तो उस जमाने में जो टोपी उतार दे उस पर लोग लानत भेजते थे। उस जमाने में कोई अगर दाढ़ी को छोटा भी कर ले तो लोग उस पर लानत भेजते थे। वो जमाना क्या था, अब बिल्कुल उलट जमाना हो गया। जो अंग्रेज ने मंसूबा बनाया था वो फौरी तौर पे काम नहीं कर सका, वो मंसूबे पे अमल नहीं हुआ। मुसलमान अंग्रेज तहजीब को नापसंद करते थे, नापसंद किया। कभी मुसलमान ने शर्ट पैंट नहीं पहनी, कभी 3 पीस सूट नहीं पहना, कभी टाई नहीं लगाई मुसलमान ने, लेकिन अब कर रहा है, अब हर मुसलमान कर रहा है। कोई शादी के नाम पे, कोई दावतों के नाम पर, है ना, इस लिबास को अपना लिया, अंग्रेजों का लिबास, नंगे सर भी रहते हैं। तो ये अंग्रेजों की जो साजिश थी, जो उनका प्लान था, आप देखिए उस वक्त फौरन तो अमल नहीं हुआ, लेकिन अब 100 बरस के बाद हो रहा है उस पर अमल। तो अंग्रेज एक एतबार से कामयाब हो गया अपने नापाक मंसूबे में। तो इसलिए जब गुलाम मुर्तजा से यह मशवरा हुआ तो उसने कहा कि मेरा बेटा गुलाम अहमद वो आपका वफादार भी है और वो अंग्रेजी भी जानता है और वो लिखता भी है, कलमकार है, अरबी भी जानता है, फारसी भी जानता है। तो आपका अगर प्रोग्राम है कोई बनास्पति डालडा टाइप नबी बनाने का, तो फिर मेरा बेटा हाजिर है। ये गुलाम मुर्तजा ने पेशकश की, अंग्रेजों ने कुछ गौर व फिक्र किया और फिर गुलाम अहमद को कहा कि भाई ये प्लान है, लेकिन बतदरीज इस पर अमल किया जाए। तो उसने सबसे पहले मुस्लिह होने का, रिफॉर्मर, उसने कहा मेरी तकारीर बड़ी नासेहाना होती है, मैं आप लोगों की इस्लाह करना चाहता हूं, मेरे जलसों में आया करो। तो पहले वो मुस्लिह बना, फिर वो मुजद्दिद बना, फिर उसने कहा कि मैं मुहद्दिस भी हूं,
फिर उसने कहा मैं मसीह मऊद भी हूं, फिर उसने कहा मैं मेहदी भी हूं, फिर उसने कहा मैं नबी भी हूं। तो इस तरह वो नबूवत का उसने दावा किया। मुसलमान उसके खिलाफ हो गए, लेकिन उस वक्त तक अकाईद के एतबार से मुसलमानों में तकसीम दर तकसीम का एक अमल भी था। तो कई वो लोग जो आज दरूदो सलाम के मुनकिर हैं, जो आज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल के मुनकिर हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जैसा समझते हैं, सिर्फ एक बशर समझते हैं या अपने बड़े भाई जैसा समझते हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने कायदियानियों को सपोर्ट किया। मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी ने अपने मदरसे तालीमुल इस्लाम से फतवा जारी किया कि कायदियानी के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, कायदियानी लड़की से शादी करना जायज है। सनाउल्लाह अमृतसरी ने अमृतसर में, ये वहाबी था गैर मुकल्लिद, इसने कहा ये कायदियानियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज है। इस तरह के लोग भी थे और ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने कहा कि कायदियानी जो है ये मुर्तद है और इर्तिदाद की बुनियाद पर वाजिबुल कत्ल है। सबसे पहले हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भावलपुर के नवाब की मौजूदगी में मिर्जा को चैलेंज किया। फिर वहां की अदालत में काफी अरसे तक ये मुकदमा चलता रहा और बिल आखिर मिर्जा गुलाम अहमद कायदियानी के दावे को गलत करार दिया गया और सारे कायदियानियों को मुर्तद करार दिया गया। और फिर उसके बाद बतदरीज ये सिलसिला चलता रहा। दूसरा रद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने फरमाया। फिर तीसरा रद आला हजरत ने फरमाया कायदियानी का। चौथा रद आला हजरत ने फरमाया। पांचवां रद आला हजरत ने फरमाया। छठा रद आला हजरत ने फरमाया। सातवां रद आला हजरत ने फरमाया। आठवां रद आला हजरत ने फरमाया। मुसलसल 6 किताबें कायदियानियों के रद में आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल मुजद्दिद मुहद्दिस व मुहक्किक बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहु आपने तहरीर फरमाई और उसमें सारे अहकामात वाज़े फरमा दी। बिल आखिर क्योंकि पाकिस्तान की तहरीक भी चल रही थी, तो कायदियानियों ने अंग्रेजों से साजबाज करके पाकिस्तान को कायदियानी स्टेट बनाने का प्रोग्राम बनाया और उसके लिए वो अपने खुफिया अंदाज में काम करने लगे। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा चौधरी फजलुल्लाह वो कायदियानी था। आप देखिए चौधरी जफरुल्लाह वो कायदियानी निकला और उसी की वजह से जब आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी तकसीम हुई कि इंडिया को और पाकिस्तान को कितने फौजी सिपाही और मनसबदार कैप्टन ब्रिगेडियर कर्नल जनरल मिलेंगे, तो इसमें बड़ी डंडी मारी गई क्योंकि कायदियानियों में फौज में जाने का रुझान बहुत पहले से था। तो ब्रिटिश आर्मी में इनको जगह मिली हुई थी। तो जब छांटी हो रही थी तो बाकायदा जवाहरलाल नेहरू का यह प्रोग्राम था कि जितने कायदियानी सिपाही हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में डाल दो और जितने गैर कायदियानी हैं वो हमारे हिस्से में रहे। तो इस तरह हमारी फौज में बहुत सारे कायदियानी यहां पर हमें बिल्कुल शुरू साल में तोहफे के तौर पे ही मिल गए। अल्लाह ताला महफूज फरमाए ऐसे तोहफे से। तो ये जो कायदियानी यहां पहुंचे, फिर ये सिपाही से तरक्की करते करते आगे मनसब तक पहुंचे। 1953 में सबसे पहले एक सुन्नी आलिम दीन हजरत सैयद
फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े खतीब थे। तो उन्होंने कायदियानियों के खिलाफ कुछ तकारीर की, जिसके नतीजे में कायदियानियों के साथ एक झगड़ा हो गया और मुनाजरा भी हुआ। तो हजरत सैयद फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने उलमा को जमा किया और फिर 1953 में बड़ी तादाद में कायदियानियों को मुर्तद करार देने के लिए तहरीक चली। दू बदू लड़ाइयां भी हुई, गलियों में कहीं भी कोई कायदियानी मिल गया, मुसलमान ने उसको मार दिया, खंजर मार दिया, डंडा मार दिया, कुछ भी इस तरीके से ये मामला चला। और 1953 में मार्शल्ला भी लगा। एक फौज का जर्नल था, जनरल अहयाउद्दीन, वो कायदियानी था, लेफ्टिनेंट जनरल था। उसने मस्जिद वजीर खान पर गोलियां चलवाई और वहां ये कैफियत हो गई कि लाश पर लाश गिरने लगी। सिर्फ वो शख्स जिंदा बचा जो लाश के नीचे दब गया था, वरना पानी ऐसे, तो यानी खून ऐसे बह रहा था जैसे लगता था कि लाल पानी से आज मस्जिद को धोया गया है। सड़कों पे खून बह रहा था। ये 1953 की बात है, पाकिस्तान बन चुका था। इसी तरह मुस्लिम मस्जिद लाहौर उर्दू बाजार के बिल्कुल सामने, वहां मस्जिद के मीनार को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, इसलिए कि मीनार पे लगे हुए लाउड स्पीकर से मर्द मोमिन मर्द गाजी हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर फरमा रहे थे कादियानियों के खिलाफ। अल्लामा अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खलील अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला, इन सब ने बड़ी जिद्दोजहद की। यहां तक के फिर जब मार्शल लग गया तो आप जानते हैं कि फौजी डिक्टेटर जब आ जाते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें बगावत के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी सुन्नी आलिम दीन, मौलाना खलील अहमद कादरी सुन्नी आलिम दीन और इनके वालिद मौलाना अबुल हसनात कादरी सुन्नी आलिम दीन रहमहुमुल्लाह अजमईन। इसी दौरान जमात इस्लामी के सरबराह मौदूदी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मौदूदी साहब से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कायदियानियों से कोई झगड़ा नहीं, हमारी जमात का भी इनकी जमात से कोई झगड़ा नहीं, लिहाजा हम तो इनसे लड़ते झगड़ते हैं ही नहीं, हमारे नजदीकी जैसे चाहे रहें, मतलब जो चाहे करें। अगर इन्होंने एक और नबी बना लिया है तो बना ले। उन्होंने बाकायदा माफी नामा लिख करके दिया मौदूदी साहब, उनको रिहाई मिल गई। लेकिन इन तीनों को फांसी घाट तक ले जाया गया। फिर इस ज़िमन में मिस्र के एक आलिम हसनुल बन्ना ने मुफ्ती आजम फलस्तीन हजरत सैयद अमीनुल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से राब्ता करके पाकिस्तान में इस अमल को रुकवाया कि सजाए मौत ना हो, इसको रुकवाया गया। फिर इन तीनों की रिहाई अमल में आई और फिर कुछ मुज़ाकरात हुए थे कायदियानियत के बारे में और फिर वो ठंडे पड़ गए, सर्द मोहरी की नजर हो गए, फाइलें बंद हो गई। 1974 में फिर अचानक ये मामला शुरू हुआ जब अंजुमन तलबा इस्लाम के कुछ नौजवान बच्चे वजीराबाद के करीब रबवा रेलवे स्टेशन पे रुके और उन्होंने वहां नारे लगाए
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के, तो कादियानी लड़के ट्रेन में घुस गए और छुरियों से और लाठियों से हमला कर दिया। और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में यह तहरीक दोबारा चल पड़ी। और उसी दौरान कौमी असेंबली में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के लिए एक करारदाद, उस वक्त जमीयत उलमाए पाकिस्तान के 7 मेंबरान थे जो कि यहां मौजूद थे कौमी असेंबली में। तो उनके जो पार्लिमानी लीडर थे मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, उन्होंने ये करारदाद जो है वो लिखी। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी साहब उनके साथ थे। मज़मून ड्राफ्ट हुआ और फिर ये करारदाद पेश की गई। फिर इस करारदाद पर बहस मुबाहिसा हुआ। बहुत से उलमा ने असेंबली के बाहर से आकर भी तकारीर की और बड़ी इस सिलसिले में मेहनत की गई। जो कायदे ऐवान थे वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे इस मसले में। तो उनकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए एक खास काम किया अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी साहब और मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब। कहा कि ये आपने मिर्जा को बुलाया है कि ये हमारी बातों का जवाब दे। तो मिर्जा नासिर अहमद को बुलाया। मिर्जा नासिर अहमद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पोता। तो उसको बुलाया कि बात सुने, जरा कोई बात करनी है। वो आ गया। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी ने कहा कि तुम्हारा हमारे बारे में क्या ख्याल है, हम कौन है? तो मिर्जा नासिर ने कहा तुम पक्के काफिर हो, क्योंकि मेरे दादा को नबी नहीं मानते, तुम काफिर। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, और ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं ये कौन है? कहा ये भी काफिर है। तो वो भुट्टो साहब जो थे वो तो गुस्से में आ गए। अच्छा, वो तो बात बात पे गुस्सा होते थे, उनका मिजाज था। वो तो एकदम से मुट्ठी बंद करी उन्होंने और डेस्क के ऊपर ऐसे जोर से मुक्का मारा। कहा मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, इसने मुझे काफिर कहा। तो अल्लामा अज़हरी साहब ने ठंडा किया, नहीं, हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखें हम लोगों के बारे में कादियानियों के ये ख्यालात हैं। ये मुट्ठी भर कादियानी अपने सिवा किसी को मुसलमान समझते ही नहीं। कहते बस हम मुसलमान हैं और जो हमारे मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी ना माने वो काफिर है। तो फिर उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। फिर उन्होंने उसी दिन तय किया कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। ये भुट्टो साहब ने उस दिन तय कर दिया था। फिर रोजाना दलाइल वगैरह होते रहे। याह्या बख्तियार एक अटॉर्नी जनरल थे, कानून की जबान और होती है, लिहाजा वो दलाइल सुनते थे उलमाए अहले सुन्नत के और फिर उसको अपने कानूनी अंदाज में स्पीकर के सामने पेश करते थे। यहां तक के 6 सितंबर आ गया। 6 सितंबर 1974 स्पीकर ने कहा, फारूक अली खान स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि मिर्जा नासिर अहमद, अब आप बताइए आप इनके दावे के बारे में क्या जवाबी तौर पे कहना चाहते हैं। उसने कहा मैं कल जवाब दूंगा, आज नहीं। मुफ्ती महमूद साहब भी थे, तो वो पीछे से आवाज आई। ये मुफ्ती महमूद ये फजलुर रहमान के, जानते हैं ना आप? नहीं जानते? मुल्ला डीजल को तो जानते हैं ना? हाँ, तो मुल्ला डीजल के बाप मुफ्ती महमूद। तो उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब कल क्यों जवाब देंगे, आज ही जवाब दीजिए, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि असेंबली की कार्रवाई दिन और रात मुसलसल चल सकती है, तो अहम मसला है, आज ही जवाब दीजिए। तो उसने पीछे मुड़कर कहा था, ये रिकॉर्ड पे बात,
कि मुफ्ती साहब खामोश बैठे रहिए, ये तो तुम्हारे मदरसे दारुल उलूम देवबंद के मौलवी कासिम नानोतवी ने अंग्रेजों के कहने पर नबूवत का दरवाजा खोला था, बल्कि नकब लगाई थी, डाकाजनी की थी, और फिर अंग्रेजों ने मेरे दादा को नबी बना दिया था, वरना कोई जरूरत नहीं थी। ये शाखसाना, ये झगड़ा, शाखसाना झगड़े को कहते हैं, ये झगड़ा, ये तनाजा, ये तुम्हारे घर से शुरू हुआ है। ये बात की ना तो वो मुफ्ती साहब जो बात कर रहे थे तो वो ऐसे डेस्क पर उन्होंने सर झुका लिया। अल्लामा अजहरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने फरमाया, मुफ्ती साहब कौन सी लानत का तौक आपके गले में पड़ गया कि जिसके बोझ से आपकी गर्दन भी नहीं उठती है। बहरहाल असेंबली का इजलास बर्खास्त हुआ। 7 सितंबर को इजलास शुरू हुआ। 7 सितंबर 1974 पूरा कोरम भरा हुआ था, सारे मेंबरान मौजूद थे, कौमी असेंबली के भी और सेनेट के भी। प्रेस गैलरी जो असेंबली की 2 छती थी भरी हुई थी। इसराइल से यहूदी प्रेस फोटोग्राफर भी आए थे, इसराइल के रिपोर्टर्स भी थे, बर्तानिया के लोग भी थे, पूरा यूरोप था, पूरा एशिया था, सारे दुनिया भर के ममालिक के लोग भरे हुए थे कि देखिए आज क्या फैसला होता है। और ऐसे मौके पर उस जमाने में असेंबली के साथ कोई मस्जिद नहीं थी, बस एक कैफेटेरिया था, और उस कैफेटेरिया में ही नायलॉन की चटाई बिछा देते थे, और नायलॉन की चटाई बिछाकर वहां पर जो है वो नमाज वगैरह अदा कर लेते थे। तो उसी जगह पर नायलॉन की चटाई वाले मकाम पर चंद उलमा बैठ गए और वो दुआ करने के लिए बैठ गए, और उन्होंने दुआ की, सब मिलके दुआ कर रहे थे। सुबह का वक्त था, ये असेंबली में जाएंगे तो असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि करारदाद पेश करने वाले भी दुआ में मसरूफ थे। तो यहां पर मौलाना शाह अहमद नूरानी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल अज़हरी, अल्लामा मोहम्मद जाकिर मोहम्मदी जंग शरीफ के, सैयद अल्लामा सैयद मोहम्मद अली रजवी, मुफ्ती जफर अली नोमानी, अल्लामा शाह महमूद गुजराती, ये सब यहां पर मौजूद थे, ये दुआ कर रहे थे। और सुबह का वक्त हो गया था, हल्की हल्की सूरज की रोशनी भी आ रही थी। इस कैफेटेरिया के माहौल में सबकी दाढ़ियां आंसुओं से तर थी, आंसू के कतरे मोती बन के चमक रहे थे, और सबकी दुआ का एक ही जुमला था कि या अल्लाह हम यहां तक ला सकते थे, मामले को ले आए। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम शान एजाज यानी खत्म नबूवत का कोई मौजिजा जाहिर हो जाए तो फिर ये सब काम आसान हो जाए। ये दुआ करके वहां से उठे और फिर ये असेंबली में पहुंचे। इनके पहुंचते ही फौरन कार्रवाई का आगाज हुआ और इन्होंने ही कुरान मजीद की तिलावत की। 2 शेर मौला या सल्ले वसल्लम कसीदा बुर्दा शरीफ के पढ़े गए और फिर उसके बाद स्पीकर फारूक अली खान ने कहा कि मिर्जा नासिर अहमद आप अपना महजरनामा बयान करें। वो लिख करके लाया था, उसने लिफाफे से निकाला, नजर वाली ऐनक लगाई, शेरवानी पहने हुए था, सर पे पगड़ी भी बांधी हुई थी और खड़े होकर के कलाम करना चाहता था। उसके सर पे जो पंखा लगा हुआ था, उस पंखे के तीनों परों पर एक परिंदे के पर के साथ लिपटे हुए बीट रखे हुए थे और लिक्विड थे, खुश्क भी नहीं थे। एसी चल रहे थे, कोई पंखा नहीं चल रहा था। पूरी असेंबली की पार्लियामेंट के इजलास में हर पंखा बंद था। अचानक उसके सर का पंखा चला और वो पर गिरे
और उसके महजरनामे पे गिरे, टेबल पे छींटे उड़े, उसकी ऐनक पर भी गए, उसके चेहरे पे भी आए, उसकी शेरवानी भी खराब हुई। और फिर उसके बाद उसने जो है रुमाल निकाला और उसने कहा आई एम डिस्टर्ब। फिर उसने पानी मांगा, फिर खड़े खड़े उसने पानी पिया, महजरनामे को लिफाफे में डाला और फिर असेंबली की कार्रवाई का बाइकाट करते हुए, वॉकआउट करते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। स्पीकर फारूक अली खान ने आवाज दी, मिस्टर नासिर अहमद आप जवाब नहीं देंगे। कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर नासिर अहमद आप जवाब नहीं देंगे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा स्पीकर ने कहा मिस्टर नासिर अहमद आप जवाब नहीं देंगे, वो दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर स्पीकर फारूक अली खान ने कायदे ऐवान वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को मुखातिब किया कि आप क्या फरमाते हैं, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए? तो उन्होंने कहा नहीं, बस रोलिंग दो, यानी फैसला सुनाओ। तो स्पीकर ने फिर फैसला सुनाया और वो फैसला यही था जो हमारे आईन का हिस्सा है कि कायदियानी या इनके मुख्तलिफ गिरोह, लाहौरी, अहमदी या मिर्जाई, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये प्यारे आका पैगंबर इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिरी नबूवत पर ईमान नहीं रखते, लिहाजा ये गैर मुस्लिम है और ये काफिर है। एक बात कुछ मुझे जो मालूम हुई, लेकिन वो ऐसी ही है ऑफ द रिकॉर्ड, कोई इत्तेफाक करे ना करे। वजीर कानून थे अब्दुल हफीज पीरजादा। तो अब्दुल हफीज पीरजादा साहब अपनी जगह से उठकर स्पीकर के पास गए थे और गालिबन उन्होंने ये रोलिंग के वक्त लिखे हुए किसी लफ्ज मुर्तद को गैर मुस्लिम करवाया था, अकलियत में तब्दील कराया था कि मुर्तद का ऐलान ना करें, गैर मुस्लिम अकलियत का ऐलान करें। क्योंकि अगर मुर्तद का ऐलान करते तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान कायदियानियों के नापाक वजूद से खाली हो जाता। कुछ मार दिए जाते, कुछ कचरे में फेंक दिए जाते और कुछ जो बचते तो मुल्क छोड़ के भाग चुके होते, क्योंकि मुर्तद वाजिबुल कत्ल होता है। तो स्पीकर फारूक अली खान की दयानत पर यह बात छोड़ दी जाए कि उन्होंने किसके कहने पे क्या लिखा और क्या ना लिखा। ये एक तारीख है जो मैंने आपके सामने रखी है, ये बड़ी अहम तारीख है। याद रखिए कि जिस जमाने में ये असेंबली में कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त कोई और काम नहीं था। असेंबली में सब अपनी जिम्मेदारी के साथ यही इसमें हिस्सा ले रहे थे। यानी जब इल्मी बात हुई तो हमारे उलमा ने काम किया, जब दानिश की बात आई हमारे दानिश्वरों ने काम किया, हर एतबार से, हर तरीके से काम किया। तो अब याद रखिए कि अब फिर लगता है कि जंगे यमामा का दौर लौट रहा है। तो अब कायदियानी जो है वो ढीठ बनकर हर एतबार से हमें मुंह देने के लिए बाहर निकले हुए हैं। ठीक है ना। शहजाद अकबर कौमी असेंबली का एक मेंबर बड़े फख्र से कहता है कि मुझे कायदियानी होने पर फख्र है। वो खबीस नकले कुफर नबाशत वो ये बात करता है कि मुझे फख्र है। और कितनी अभी जो माविन खुसूसी वजीर आजम एक औरत रखी गई है, तो वो औरत भी जो है वो इसकी क्या नाम है, नबील मुनीर शेख वालों की कायदियानी फैमिली है, उनके घर की एक लड़की है, भांजी है, पता नहीं कौन, उसको रखा गया। तो ये मुख्तलिफ अंदाज से कायदियानियों को सपोर्ट किया जा रहा है, फेवर दिया जा रहा है। जरूरत है कि हमारे बच्चों को ये बात मालूम हो, क्योंकि ना 1953 की तारीख आपने देखी,
ना 1974 की तारीख आपने देखी, 74 से अब तक भी तकरीबन 46 साल गुजर गए। तो 46 साल का अरसा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे निसाब से ये सब चीजें निकाल दी गई हैं। इस पर अलहदा जो भी किताबें मिले, याद रखिए हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब खत्म नबूवत बड़ी अहम किताब है, आपको मिल जाएगी। उस किताब का मुताला कीजिए। फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे उलमा की छोटी बड़ी मुख्तलिफ किताबें मिल जाएंगी आपको। असेंबली की कार्रवाई पर मबनी पूरा ये वाकया जो मैंने अर्ज किया, ये अंग्रेजी में भी छपा हुआ है और ये उर्दू में भी प्रिंट मौजूद है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम बातें आपके इल्म में रहें और इनको याद रखें, ताकि आप भी आने वाले वक्त में जब जरूरत पेश आए तो आगे किसी और को ये बातें बता सकें। और देखिए इसमें सबसे अहम जो लम्हे फिक्रिया है, गौर करने का जो नुक्ता है, देखिए वो क्या है कि जब मिल्लत एक थी, मिल्लत इस्लामिया, तो आपके सामने मैंने लिस्ट पेश की है, तो कितनी बड़ी तादाद, यानी 19 या 20 ये दज्जाल कत्ल किए गए और इनके कत्ल पर इत्तेफाक था। लेकिन जो बाद में आए वो ईरान का बहाउल्लाह हुआ, बाबुल्लाह आ गया, मिर्जा गुलाम कादियानी, इन सबको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि अंग्रेज अगर इनको सपोर्ट कर रहा है तो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अंग्रेज इनको यानी मुसलमानों में इंतशार बर्पा करने वाले दज्जालों को, कज़्ज़ाबों को अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो अंग्रेज, वो हमारा दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि मिल्लत इस्लामिया जो है वो अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत देते हुए उसका इजहार करे। और यही वजह है जो अभी फ्रांस ने मुसलसल मुतालबे पर मुतालबे शुरू कर दिए हैं कि ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, आइन से ये शिक निकालो, फलानी शिक निकालो और कादियानियों को मुसलमान समझो। उसने पता नहीं कितनी बातें कह डाली हैं इस हवाले से। उनकी इबादतगाह की हिफाजत करो और फिर फला फला गुस्ताखों को जो के जेल में है, काल कोठरी में पड़े हुए, उनको निकालने का मुतालबा भी कर दिया, इनको छोड़ो। तो अंग्रेज जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है और अंग्रेज ने जो है हमारे दरमियान अपनी तहजीब के चाहने वाले छोड़ दिए हैं। काली भेड़े हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो तनवीर सफरा ने एक बड़ी अहम बात की थी कि उस शहर का नाम भी शराफतपुर था जो जंग के मैदान से कोसों दूर था। फातहों से कब्ल वो माले गनीमत पर गिरा, जंग के मैदान से जो कोसों दूर था। तो अब मामला ये है, कुर्बानियां हमने दी थी पाकिस्तान के लिए, और कादियानी जो इस तहरीके पाकिस्तान से बिल्कुल अलग और दूर थे, अब वो पाकिस्तान की नेमतों को, पाकिस्तान के वसाइल को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इक्तिसादियात को, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नफा बख्श सारे बिजनेस और कारोबार को, उनको कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो जंग के मैदान में था ही नहीं, वो माले गनीमत पर आकर के कब्जा कर बैठा है। तो हमें फिक्र करनी चाहिए, हमें अपने किरदार को देखना होगा और अपने मुताले को, अपने इल्म को इस काबिल करना होगा कि हम बाकायदा ये मुकदमा लड़ने के काबिल हो सके। याद रखिए, अगर हर मुसलमान, मर्द, औरत, जवान, बच्चा ये मुकदमा लड़ने के काबिल हो गया तो यकीन जानिए कि फिर इंशाअल्लाह ताला जीत उलमाए अहले सुन्नत की होगी, अवाम अहले सुन्नत की होगी। बस आप ये तय कर लें कि हमने ये मुकदमा लड़ना है।
व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी आप, जिसने अभी तस्बीह नहीं पढ़ी या करीब या अल्लाह, किस किसने नहीं पढ़ी हाथ खड़ा करें, जल्दी जल्दी पढ़ें। और हुवल अलीयुल अज़ीम, ये दो वजीफे जल्दी जल्दी पढ़ें और ऊपर जाकर सो जाएं। आज 23वीं शब है, मुमकिन है शब कदर है। अगर आप अभी सोएंगे नहीं तो रात को आप जाग नहीं सकेंगे, लिहाजा फौरन